ملکی سیاست میں اہم پیش رفت کا امکان، وزیر اعظم شہباز شریف ناراض لیگی رہنما اور سابق وزیر داخلہ چودھری نثار سے ملاقات کے لیے ان کی رہائش گاہ پہنچ گئے۔ چودھری نثار سے عیادت اور سیاسی امور پر گفتگو کی گئی۔ اس موقع پر شہباز شریف نے کہا، چودھری صاحب آپ تو ہمیں بھول ہی گئے۔ چودھری نثار نے جواب دیا، نہیں میاں صاحب، بس طبیعت ٹھیک نہیں رہتی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے بجلی کے بلوں میں پی ٹی وی فیس ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ اسلام آباد میں پاور اسمارٹ موبائل ایپ اپنا میٹر اپنی ریڈنگ کا بھی افتتاح کر دیا۔ تقریر سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا، اپنا میٹر اپنی ریڈنگ منصوبے کا باضابطہ اجرا باعث اطمینان ہے۔ بجلی کی قیمتوں میں کمی کے لیے اقدامات اہم ترجیح تھی۔ میٹر ریڈنگ سے متعلق بہت شکایات موصول ہو رہی تھیں۔ ایپ کا مقصد میٹر ریڈنگ کے نظام میں شفافیت اور اوور بلنگ کا خاتمہ ہے۔ بجلی کے یکساں ٹیرف نظام کے لیے حکومت کا بڑا فیصلہ، پاور ڈویژن نے یونیفارم ٹیرف سے متعلق غور کے لیے نیپرا سے رجوع کر لیا۔ اتھارٹی یکساں بجلی کے نرخوں سے متعلق درخواست پر سماعت 1 جولائی کو کرے گی۔ ٹیرف میں سبسڈی اور انڈر ڈسپوز ریٹ ریشنلائزیشن شامل کرنے کی تجویز، یونیفارم ٹیرف کا نفاذ 1 جولائی سے کرنے کی سفارش۔ سماعت میں وفاقی حکومت کی مجوزہ درخواست پر غور کیا جائے گا۔ تمام اسٹیک ہولڈر سماعت میں شریک ہو کر اپنی آراء کا اظہار کر سکتے ہیں۔ جسٹس سرفراز ڈوگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر ترین جج قرار۔ صدر مملکت نے جسٹس سرفراز ڈوگر کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا سینئر ترین جج ڈکلیئر کر دیا۔ سرفراز ڈوگر اور دیگر 2 ججز کا تبادلہ بھی مستقل قرار دے دیا گیا۔ صدر مملکت آصف زرداری نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی سینیورٹی لسٹ جاری کر دی۔ جسٹس محسن اختر کیانی دوسرے اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب سینیورٹی میں تیسرے نمبر پر ہوں گے۔ سپریم کورٹ کے مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلے کے بعد عمل درآمد کا عمل تیزی سے جاری۔ ذرائع کے مطابق عدالت عظمیٰ کے فیصلے کی کاپی الیکشن کمیشن کو موصول، قانونی ٹیم نے فیصلے کا تفصیلی جائزہ لینا شروع کر دیا۔ الیکشن کمیشن مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ کا نوٹیفیکیشن کل تک جاری کرے گا، جس کے بعد قومی اسمبلی میں حکومتی اتحاد کو دوبارہ 2/3 اکثریت حاصل ہو جائے گی۔ قانونی ٹیم کی تیار کردہ رپورٹ کی روشنی میں مخصوص نشستوں کی بحالی کا باضابطہ اعلان کیا جائے گا۔ دریائے سوات کے کنارے تجاوزات کے خلاف آپریشن کا آغاز، ضلع انتظامیہ، پولیس اور متعلقہ ادارے مشترکہ آپریشنز میں شریک۔ دریائے سوات کے کنارے غیر قانونی مائننگ مکمل طور پر بند۔ ترجمان کا کہنا ہے تمام ذمہ داروں کے خلاف سخت قانونی کارروائی بھی کی جائے گی۔ دریا کے اطراف بیریئرز کی تعمیر کا آغاز کیا جائے گا۔ تجاوزات کے خلاف آپریشن کا دائرہ کار مزید وسیع کیا جائے گا۔ سیلابی ریلے میں بہہ جانے والے بچے کی لاش 4 سدہ میں دریا سے مل گئی۔ دریائے سوات میں ڈوب کر جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 12 ہو گئی۔ ریسکیو 1122 کے مطابق بچے کی لاش اسپتال منتقل کر دی گئی۔ جسے خاکی کو ایمبولینس میں آبائی علاقے مردان منتقل کیا جائے گا۔ لاپتہ ایک شخص کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن جاری۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی سوات حادثے میں جاں بحق افراد کی رہائش گاہ آمد۔ متاثرہ خاندانوں سے اظہار تعزیت اور جاں بحق افراد کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ وزیر دفاع نے کہا کہ دکھ کی اس گھڑی میں غمزدہ خاندانوں کے ساتھ ہیں۔ سوات کا واقعہ مکمل بریک ڈاؤن تھا، اس سے بڑی غفلت کیا ہو سکتی ہے۔ والدین کی آنکھوں کے سامنے بچے دریا کی نظر ہو گئے۔ سانحہ سوات میں اگر بر وقت مدد فراہم کی جاتی تو قیمتی جانیں بچائی جا سکتی تھی۔ مخصوص طبقہ نوجوانوں کے دل سے وطن کی محبت ختم کرنے کی سازش کرتا رہا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کی گھوڑا گلی مری میں اسکاؤٹس کے تربیتی کیمپ کا دورہ۔ گفتگو میں کہا، نوجوان نسل بلاول بھٹو کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتی ہے اور وہ جلد عوامی مینڈیٹ سے ملک کے اگلے وزیر اعظم ہوں گے۔ لاہور میں مونسون بارش کا ہیوی اسپیل، مختلف علاقوں میں بادل کھل کر برسے۔ قصور، وزیر آباد، شیخوپورہ میں موسلادھار بارش، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ متعدد علاقوں میں پانی جمع ہو گیا، سڑکیں اور گلیاں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی۔ گرمی اور ہب سے پریشان شہریوں نے سکھ کا سانس لیا۔ نشتر ٹاؤن میں 25، تاج پورہ میں 20، مغل پورہ میں 18 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ بارشوں اور تیز ہواؤں کے باعث بجلی کا ترسیلی نظام بھی متاثر، کئی درخت جڑوں سے اکھڑ گئے۔
खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों से 5 खवातीन और 8 बच्चों समेत 19 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी हुए। सैलाबी रैली की वजह से स्वात सबसे ज्यादा मुतासिर, 13 अफराद जान की बाजी हार गए। बारिशों में 56 घरों को नुकसान पहुंचा, 6 मुकम्मल तौर पर तबाह हुए। PDMA ने हालिया बारिशों और सैलाबी रेलों से होने वाले नुकसान की तफसीलात जारी कर दी। बारिशों का सिलसिला 1 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान, जिला इंतजामिया को अलर्ट रहने और पेशगी इकदाम की हिदायत। शहर कायद में बारिश के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी हो गए। लियारी मूसा लेन में इमारत की छत गिरने से बाप और बेटी जाँ बहक हुए। मंजूर कॉलोनी में घर की छत गिरने से एक बच्चा जाँ बहक, बाप और बेटा जख्मी हुए। न्यू कराची सेक्टर 11J11 में करंट लगने से 40 साल शख्स जान की बाजी हार गया। कराची में 2 रोज की बारिश के बाद सड़कों पर जा बजा जमा पानी ने डेंगू के खतरे की घंटी बजा दी। शाहराहों और गलियों में जमा पानी बीमारियों को दावत देने लगा। गार्डन, लसबेला, जमशेद रोड समेत कई इलाकों में सूरत हाल तशवीशनाक। महकमे सेहत सिंध ने डेंगू के खदशे पर एडवाइजरी जारी कर दी। शहरियों को एहतियात बरतने और घरों के आसपास पानी साफ रखने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन NDMA से टेलीफोनिक राबता। चेयरमैन NDMA ने वज़ीर आज़म को बारिशों की सूरत हाल से आगाह किया। वज़ीर आज़म की सूबाई हुकूमतों के साथ राबते में रहने और मुआवनत की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, रेस्क्यू इदारों, ज़िला इंतज़ामिया और सूबाई हुकूमतों से राबता मज़ीद फ़ाल किया जाए। मोबाइल फ़ोन पैगाम के ज़रिए शहरियों को मौसमी सूरत हाल की पेशगी इत्तला दी जाए। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर पंजाब भर में मानसून हंगामी प्लान पर अमल दरामद शुरू। हर जिले में डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर कायम। सेंटर वज़ीर आला की हिदायत पर 24 घंटे फाल रहेगा। PDMA ने हादसात और नुकसानात से बचाव के लिए SOPs जारी कर दिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इंतजामिया और दीगर इदारों को मुतल्लिका इदारों में बोसीदा इमारतों की निशानदेही की हिदायत कर दी। कहा, आवाम की हिफाजत हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला दक्की में ऑपरेशन। 2 भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्द जहनुम वासिल 2 गिरफ्तार कर लिए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद कर लिया गया। गिरफ्तार दहशतगर्द इलाके में मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्वस रहे। इलाके में मुमकिना दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। दहशतगर्दों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। दहशतगर्दी में मुलव्विस हर सहूलतकार, मददगार और मुजरिम को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। खित्ते में दहशतगर्दी के असल चेहरे को दुनिया के सामने बेनकाब किया जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का 2 टोक मौक़िफ़। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कोर हेडक्वार्टर पेशावर का दौरा किया। बन्नू गैरिजन में होने वाली दहशतगर्द हमले के शोहदा की नमाज जनाजा में शिरकत की। CMH बन्नू में ज़ेर इलाज ज़ख्मी जवानों की इयादत की। मादर वतन के दिफा में जाँ बहक होने वालों के शोहदा को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की CMH बन्नू आमद हमले में सिक्योरिटी फोर्सेस के ज़ख्मी जवानों की इयादत की। उनके बुलंद हौसले की सराहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, आपका हौसला देखकर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारा अज़्म मज़ीद मजबूत हुआ। आप पाकिस्तान के बहादुर सपूत हैं और आपका गैर मामूली जज्बा देखकर हमारा सर फ़ख्र से बुलंद हो गया। जिस कौम के पास आप जैसे बहादुर बेटे हों, उसे कोई दुश्मन शिकस्त नहीं दे सकता। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और तुर्क वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राबता। 2 तरफ़ा और कसीरुल तरफ़ा ताउन पर तबादला ख़याल। दोनों रहनुमाओं की मलेशिया में होने वाले आसियान रीजनल फोरम के बारे में भी बातचीत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार जुलाई में अमरीका और चीन समेत 4 अहम ममालिक के दौरे करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार पहले आज़रबाईजान का दौरा करेंगे। SCO वज़ीर ख़ारजा मुलाकात के लिए चीन भी जाएंगे। पाकिस्तान के दुनिया में सबसे ज़्यादा बेहतर होने वाली मईशत बनने की खबर कौम को मुबारक। मईशत में बेहतरी पर पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खिराज तहसीन। कहा, शहबाज शरीफ ने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया, दुनिया में सबसे तेज़ी से बेहतर होने वाली मईशत बनाया।
महंगाई 38% से सिंगल डिजिट में, पॉलिसी रेट 22 से 11% पर पहले ही आ चुका। रिकॉर्ड तरसीलात ज़र और स्टॉक एक्सचेंज का तारीख की बुलंद तरीन सतह पर होना मौशी कामयाबियों की दलील है। मखसूस नशिस्तें PTI का हक था, हमें कौमी और सूबाई इंतखाबात में जीती नशिस्तें नहीं दी गईं। यहाँ सिर्फ इक़्तिदार की रस्साकशी और मफादात की सियासत जारी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम उर रहमान की गुफ्तगू, कहते हैं मुझे कामयाब करार दिया गया लेकिन मैंने सीट वापस कर दी। पीपल्स पार्टी ने बल्दियात पर डाका मारकर जाली तरीके से कराची में मेयर मुसल्लत किया। पाकिस्तान इस वक्त मौशी बहाली के अमल से गुजर रहा है। शफाफियत मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का तुर्रा इम्तियाज़ है। PTI हुकूमत ने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट के दहाने पर लाखड़ा किया था। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब, कहा PTI हुकूमत की ना तजर्बाकारी, ना अहली और लूट मार का खमियाजा मुल्क को भुगतना पड़ा। PTI हुकूमत के 4 साल में मुल्क तबाही से दो चार हुआ। जिसे यूनियन काउंसिल चलाने का तजर्बा नहीं था उसे मुल्क दे दिया गया। पंजाब में बैठकर हाफिज़ नईम उर रहमान सिंध के बल्दियाती निज़ाम को टारगेट कर रहे हैं। लगता है हाफिज़ नईम मेयर ना बनने के सदमे से अभी तक बाहर नहीं निकले। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन का हाफिज़ नईम उर रहमान के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहते हैं सिंध का बल्दियाती निज़ाम अपनी आइनी हदूद में काम कर रहा है। सियासी नाकामी छुपाने के लिए सिंध हुकूमत पर इल्ज़ामात लगाना मुनासिब नहीं। जमात इस्लामी नफरत के बजाय तामीरी सियासत करे। पंजाब असम्बली में अपोजिशन अरकान के मुअत्तली का मामला संगीन सूरत इख्तियार कर गया। 26 अरकान की मुअत्तली के बाद अपोजिशन का आईनी इख्तियार भी महदूद हो गया। असम्बली कवायद के मुताबिक इजलास बुलाने के लिए अपोजिशन को कम अज़ कम 93 अरकान के दस्तखत दरकार होते हैं। अरकान की मुअत्तली के बाद अपोजिशन के पास सिर्फ 79 अरकान रह गए हैं। जब तक मुअत्तल अरकान को बहाल नहीं किया जाता, अपोजिशन किसी भी किस्म की रिक्वेजिशन जमा नहीं करा सकती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने ट्रांसफ़र केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सीनियर वकील मुनीर मलिक ने जजेस की जानिब से अपील दायर की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आइन और हक़ाइक़ का दुरुस्त जायज़ा नहीं लिया। जजेस का तबादला और सीनियरिटी के तयन के लिए मामला सदर को भिजवाने का हुक्म कालदम, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस का तबादला आइन के खिलाफ करार दिया जाए। इंट्रा कोर्ट अपील पर फैसले तक 19 जून के फैसले को मुअत्तल किया जाए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से डिप्टी मेयर कराची की मुलाकात। सलमान अब्दुल्ला मुराद ने तरक्याती मनसूबों से मुतालिक सदर को आगाह किया। सदर आसिफ अली जरदारी की डिप्टी मेयर को कराची की तामीर और तरक्की में शब रोज़ मेहनत करने की हिदायत। कहा कराची के लोगों ने बिलावल भुट्टो के विजन पर एतमाद करके पीपल्स पार्टी को कामयाब किया। कराची की तामीर और तरक्की में बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन को आगे बढ़ाएं। बलूचिस्तान के ज़िला मूसा खेल और गिरदोनवा में ज़लज़ला। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक शिद्दत 5.5 रिकॉर्ड की गई। गहराई 28 किलोमीटर थी। ज़लज़ले का मरकज़ डेरा गाजी खान से तकरीबन 80 किलोमीटर शुमाल मगरिब में था। ज़लज़ले के नतीजे में कम अज़ कम 21 मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हुए। मुख्तलिफ वाक़यात में 4 अफराद ज़ख्मी हुए।